اور اب پیش خبروں کی تفصیل۔ ریاستی بی جے پی کے جنرل سیکریٹری اشوک کول نے الزام لگایا ہے کہ بیشتر علیحدگی پسندوں اور ملیٹنٹ لیڈران کے بچے بیرون ممالک یا تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یا نوکری کر رہے ہیں۔ کول کا کہنا ہے کہ عام کشمیری ہی پریشان ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے ایک انگریزی اخبار کا حوالہ دیا ہے۔ کول سری نگر میں پارٹی کی ایک تقریب میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ علیحدگی پسند لیڈران کے خلاف کارروائی کے زمینی سطح پر مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ کول نے کہا کہ صورتحال میں اتنی تبدیلی آئی ہے کہ اب وزیر داخلہ کے دورے پر علیحدگی پسندوں نے ہڑتال کی کال بھی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریاست میں پنچایتی اداروں کو بااختیار بنانے کے حق میں ہے۔ جتنے بچے یہاں کے ٹیررسٹ، یہاں کے حریت کے نیتاؤں کے آؤٹ سائڈ کنٹری امریکہ میں اور باقی سب دیشوں میں یا تو وہ ٹریننگ کر رہے ہیں یا تو وہاں ملازمت کر رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جب یہ لوگ یہاں سنیں گے، یہاں اس کو پڑھیں گے تو لوگوں کو لگے گا کہ بھئی ہم کو کس مصیبت میں ڈال رہے ہیں اور اپنی کیا ان کی حالت ہے۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ کسی بچے نے کہا جی میں بھی مجاہد بنوں گا، وہ الگ وشے ہے، لیکن عام ان کے بچوں کی، ان کے لوگوں کی، ان کے کڈس کی کیا سچویشن ہے وہ آج ایکسل شہر میں آپ دیکھیں بہت بڑا وہ چھپا ہے۔ اور عام طور پر مجھے لگتا ہے کہ لوگوں نے اس کو سراہا ہے۔ جو بھی گڈ گورننس کے لیے ہمارے گورنر صاحب کی ایڈمنسٹریشن نے قدم اٹھائے ہیں، لوگوں نے ان کو سراہا۔ عام کشمیری نے، جو ہم کبھی کبھی یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن عام جو کشمیر کا ویکتی ہے، کشمیر کا لیڈر بھی ہے، کشمیر کا عام ناگرک ہے، وہ ان چیزوں کو ہیل کر رہا ہے۔ گورنر کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں اور مجھے لگتا ہے ان سے ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ہوم منسٹر صاحب آئے ہیں، کسی نے بند کی کال نہیں دی۔ ایسا تو ہوا پہلی بار ہی ہے 30 سال میں۔ جب بھی یہاں ہوم منسٹر آتے تھے یا پرائم منسٹر آتے تھے تو بند کی کال ہوتی تھی۔ آج تو امت شاہ جی آئے ایز اے ہوم منسٹر، کسی نے بند کی کال نہیں دی۔ اسی سے ہم کو لگتا ہے کہ بھائی چینج تو ہے، عام لوگوں میں چینج ہے، عام سماج میں چینج ہے، اور عام یہ جو لیڈرز ہیں ان کے جو اس پرکار کے لوگوں کو بہکاتے تھے ان میں بھی چینج ہے۔ حریت کانفرنس کے اہل خانہ سے متعلق وزیر داخلہ کے حالیہ بیان پر شاہ فیصل نے اپنا رد عمل ظاہر کیا ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ جس طرح دیگر پارٹی لیڈروں کو اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ممالک روانہ کرنے کا حق ہے، اسی طرح حریت کو بھی ہے۔ شاہ فیصل نے کہا کہ اس معاملے کو موضوع بحث بنانا مناسب نہیں ہے۔ جب بھی ہم کسی انسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کریں، کرٹک بھی اگر کرنا ہے، تنقید کرنی ہے تو تنقید لاجیکل ہونی چاہیے۔ کسی ایجنڈا سے تنقید کرنا مجھے لگتا ہے مناسب نہیں ہوتا ہے۔ ہر کسی کو حق بنتا ہے کہ وہ فارن میں اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ اگر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر کسی اور پارٹی کے لوگ ہیں، اگر وہ اپنے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں، مجھے لگتا ہے حریت والوں کو بھی اپنے بچے باہر بھیجنے کی اس کا حق بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ایسی تنقید شاید کرنا لازم نہیں بنتا۔ عوامی اتحاد پارٹی کے چیئرمین انجینئر رشید نے کہا کہ امرناتھ یاتری ہمارے معزز مہمان ہیں اور کشمیری لوگ یاترا کے خوشگوار اور پرامن انعقاد کے لیے بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ تاہم انجینئر رشید نے کہا کہ یاترا کے نام پر عوام کی نقل و حرکت پر پابندی لگانا افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے کشمیر اور نئی دہلی کے بیچ خلیج مزید بڑھے گی۔ انجینئر رشید اوڑی میں پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے ایک کنونشن میں شرکت کے بعد میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ کنونشن میں ڈاکٹر شاہ فیصل اور دیگر پارٹی لیڈران موجود تھے۔ انجینئر رشید نے کہا کہ ریاست میں خاندانی حکمرانی اور روایتی سیاسی پارٹیوں نے لوگوں کے مسائل میں اضافے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ نہ صرف ریاست کے عوام کی بھلائی کے لیے کام کرے گا بلکہ طویل مدت سے زیر التوا مسائل کے حل کی بھی کوشش کرے گا۔ انہوں نے پارلیمانی انتخابات میں حمایت پر عوام کا شکریہ ادا کیا۔ شاہ فیصل نے کہا کہ انہوں نے ایک بڑے کاز کے لیے اپنی ملازمت چھوڑی ہے تاکہ 3 دہائیوں سے جاری مشکلات کا حل ہو اور لوگ باوقار زندگی گزار سکیں۔ آنے والے اسمبلی کے انتخابات ہیں، پورے کشمیر میں، پورے جموں میں پیپلز یونائٹڈ فرنٹ کے جھنڈے ہر جگہ لہرائے جائیں گے، کیونکہ ریاست کے لوگوں کی مجبوری ہے، جو پولیٹیکل ویکیوم ہے این سی پی ڈی پی اور باقی لوگوں کی غلطیوں کی وجہ سے، اس ویکیوم کو فل اپ کرنے کے لیے خلوص کی بنیاد پر انشاءاللہ پیپلز یونائٹڈ فرنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ نریندر مودی جی سے، امت شاہ جی سے یہی گزارش کریں گے کہ عزرائے کرم یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں کمنل ایجنڈا مت ڈال دیجیے۔ یاترا کو کامیاب بنانے والا ہمارا ریڑے بان ہے، ہمارا گھوڑے بان ہے، ہمارے مزدور ہیں، یہاں کے لوگ ہیں۔ حریت سے لے کے مین اسٹریم تک سارے لوگ چاہتے ہیں کہ یاترا چلے، اور ہماری گزارش ہی ہوگی ایڈمنسٹریشن سے کہ مہربانی کر کے کشمیر کو قید خانہ مت بنائیے، اور ایسا کر کے آپ اپنے ہی مفادات پر کلاڑی مار رہے ہیں۔ کشمیری 30 سال سے مظالم دیکھتے آئے ہیں، اگر آپ کچھ دنوں کے لیے یاترا کے معنی سڑک بند رکھتے ہیں شاید کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن کشمیریوں کے دل آپ سے کوسوں میل اور دور جائیں گے۔
कश्मीरी पंडितों के एक वफ्द ने सतीश मालधर की क़यादत में APHC हेडक्वार्टर श्रीनगर में मीरवाइज उमर फारूक और हुर्रियत के दीगर लीडरों से मुलाकात की। इस वफ्द को यकीन दिलाया गया कि कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए मीरवाइज की मुकम्मल हिमायत हासिल रहेगी। इस ज़िम्न में समाज के मुख्तलिफ तबकों पर मुश्तमिल एक कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। मीरवाइज ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के बगैर कश्मीरी मुआशरा अधूरा है। वजारत देही तरक्की के मरकजी सेक्रेटरी राहुल भटनागर ने आज श्रीनगर में पंच, सरपंच और BDOs की मीटिंग मुनक्किद की। इस मीटिंग में शुरका को मरकजी हुकूमत की नई स्कीमों से वाकिफ कराया गया और इन्हें फंड्स के मुनासिब इस्तेमाल की हिदायत दी गई। मीटिंग के दौरान पंचायती राज से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादुला ख्याल किया गया। आया था यहाँ पे कि जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उनका जायज़ा लेने, ये देखने कि वो ठीक से पहुँच रहे हैं लोगों तक, गांव के लोगों तक उसके जो फ़ायदे हैं वो पहुँच रहे हैं। और ख़ास तौर पे जो हमारे निर्वाचित इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायतों के, तो अब उनकी हम धीरे धीरे जिम्मेदारी जो है, जैसे कि हमारे उसमें एक्ट में भी है कि उनको हमें और जिम्मेदारियाँ देनी हैं। बांडीपुरा का पानार हाई स्कूल इंचार्ज हेडमास्टर और एक उस्ताद के दरमियान चल रहे तनाज़े की वजह से चंद रोज से सुर्खियों में है। इस तनाज़े के बीच स्कूल में आज एक तालिबा पुरस्कार तौर पर बीमार पड़ गई। इस तालिबा को इलाज के लिए जिला अस्पताल बांडीपुरा लाया गया। BMO बांडीपुरा डॉक्टर इशफाक ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस तालिबा ने जहर खाया था। वाज़ेह रहे कि स्कूल के तलबा व तालिबात 2 रोज से CO ऑफिस का रुख कर रहे हैं। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि CO ऑफिस की जानिब से बच्चों का स्कूल छोड़कर दफ्तर आने पर बन रहे दबाव की वजह से ये वाक़या पेश आया होगा। पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट जेल किश्तवाड़ के अहाते में बरामद हुए ड्रोन का मुअम्मा हल कर लिया है। SSP किश्तवाड़ ने इस ज़िम्न में मीडिया को तफसीलात फराहम की। SSP ने कहा कि एक मकामी नौजवान ने घर में किसी तकरीब के लिए ड्रोन खरीदा था और इसकी प्रैक्टिस के दौरान वाईफाई कनेक्शन मुनक़त्ता होने से ड्रोन डिस्ट्रिक्ट जेल के अहाते में गिरा था। उन्होंने कहा कि मज़कूरा नौजवान ने खुद ही पुलिस से राबिता करते हुए ड्रोन के बारे में एतराफ़ किया। SSP ने इस नौजवान को भी मीडिया के सामने पेश किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं वो ये है कि एक बच्चे ने अमेज़ॉन के ज़रिए उसको मंगवाया था, तो ड्रोन जो थी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। वो उसका पीछा करते रहे, उसको मिली नहीं। उस बच्चे ने तब उसको खोजना बंद कर दिया क्योंकि उसको वो दिखी नहीं। और कल जब उसने सारा का सारा मीडिया में ये सब कुछ पढ़ा तो उसने खुद से कन्फेस किया। रियासत से आजमीन के सफर हज पर जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। आज सुबह 2 तैयारों के जरिए 304 आजमीन मुकद्दस सफर पर रवाना हुए हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आजमीन के काफिले को झंडी दिखाई। पेश है रिपोर्ट। एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना। ऐसी खुशी जिंदगी में हमको पहली बार लिया, बयान नहीं कर सकता मैं बयान। और उम्मीद करता हूँ कि इनकी हज कामयाब होगी और दुआएं अल्लाह कबूल करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक। खुश किस्मत हैं ये लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने घर की जियारत का मौका नसीब किया है। मुकद्दस सफर पर रवाना होने वाले इन आजमीन के दिल शादमा और ईमानी कैफियत से मुनव्वर हैं। श्रीनगर के हज हाउस से आजमीन का पहला काफिला मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ है। तलबिया की गूंज में आजमीन ने अपना सफर शुरू किया। हज हाउस पर DC श्रीनगर ने आजमीन की बसों को श्रीनगर एयरपोर्ट रवाना किया। आजमीन को विदा करने के लिए इनके रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद वहाँ मौजूद थी। इस मुकद्दस सफर के लिए मुंतखब होने पर खुशी से सरशार आजमीन ने बारगाह खुदावंदी में शुक्रिया अदा किया। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें चुना। हमारा पहली बार ये सफर है इसमें, और हर एक मुसलमान को अल्लाह ताला वहाँ पहुँचाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला हर एक मुसलमान को ये नसीब करे कि वो ज़ियारत जाए। आज हमारी फीलिंग ये हो रही है कि हमको यकीन ही नहीं आ रहा है कि ऐसी खुशी ज़िंदगी में हमको पहली बार लिया। अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारे सब घर वालों को और सब मुसलमानों को ये नसीब करे। श्रीनगर एयरपोर्ट पर गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आजमीन हज को रवाना किया।
इस मौके पर गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर बसीर अहमद खान, IG कश्मीर SP पानी, DC श्रीनगर शाहिद इकबाल, DC बडगाम सहरिश असगर और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आज़मीन को मुबारकबाद दी। मैं हज की मुबारकबाद कहने के लिए आया था और उम्मीद करता हूँ कि इनकी हज कामयाब होगी और दुआएं अल्लाह कबूल करेगा। सर, क्या कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हाजियों के लिए? उनसे पूछिए, दे ऑल आर सेटिस्फाइड। गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने आज़मीन हज के लिए किए गए तमाम इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। DC श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने हज हाउस में फराहम की जा रही सहूलतों से वाकिफ कराया। अरेंजमेंट्स जो यहाँ पर जो एयरपोर्ट पर अरेंजमेंट्स है, एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से काफ़ी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से जो फ्लाइट्स के इंतज़ामात स्पाइस जेट ने किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। तो इस बार जैसे पहले भी कहा गया है 11,565 हाजी साहिबान यहाँ से जम्मू कश्मीर से जा रहे हैं, जिसमें कश्मीर डिवीज़न से 10,000 हाजी जा रहे हैं, 10,000 से ज़ायद, और जम्मू डिवीज़न से 1,000 से ज़्यादा हाजी साहिबान जा रहे हैं। तो इनके लिए तमाम तर इंतजामात किए गए हैं। ये 4 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा और शुरू में 2 फ्लाइटें हैं, 3 फ्लाइटें हैं, फिर 1 फ्लाइट भी चलेगी। लगभग 6,000 लोग जो यहाँ से, बाकी जो आउट स्टेशन हाजी हैं वो भी यहाँ से आके जाएंगे। जो आउट स्टेशन हाजीज हैं उनके लिए अकोमोडेशन का यहाँ पे रखा गया है, बेसिक रिफ्रेशमेंट, सैनिटेशन, पानी, हेल्थ के जितने भी अरेंजमेंट हाजी उसमें रिक्वायर्ड थे वो किए गए हैं। और उसके बाद यहीं पे इनके सिक्योरिटी फ्रिस्किंग और जो भी इनका लगेज है वो यहीं पे लिया जा रहा है, सो दैट इनको कन्वीनियंस रहे। और ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट यहाँ से एयरपोर्ट पे किया गया है, वहाँ से इनको फाइनली फ्लैग ऑफ किया जाएगा। आज़मीन हज ने कहा कि वो आलम इस्लाम खासकर रियासत की खुशहाली और अमन अमान के लिए खुसूसी दुआएं करेंगे। हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र करते हैं। हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ी इनायत हो गई हम पर कि अल्लाह ताला ने हमने अपने घर का दीदार करने के लिए बुला लिया। कश्मीर के लिए ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला कश्मीर को जनाब अली अमन और सुकून बख्शे, चैन सुकून की ज़िंदगी इन लोगों को अल्लाह ताला दे और हालात ठीक हो जाएं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि यंग एज में अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है और मैं इसको इंशाल्लाह ताला अच्छे से कामयाबी से पूरा करूंगा। और यही दुआ करूंगा कि हमारे कश्मीर में जितने भी इस वक्त हालात हैं सब में पीस आ जाए। बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकता कि मेरे बचपन का ख्वाब पूरा हो गया। और यहाँ से जाती है अल्लाह, सबसे पहले मैं दुआ करूँगा आलम इस्लाम के लिए, आलम इस्लाम के दिलों को अल्लाह ताला सब मुसलमानों को वहाँ पहुँचाए और आलम इस्लाम में खुशहाली और अमन लाए, ख़ासकर हमारे जम्मू एंड कश्मीर को अमन का त्यौहार बनाए। हम दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारे सरजमीन को फिर से शादाब करे। रियासत भर से इस साल 11,500 से ज्यादा आज़मीन सफर हज की सआदत हासिल करेंगे और इस महीने के इख्तिताम तक आज़मीन के काफिलों की रवानगी का सिलसिला जारी रहेगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए समीउल्लाह और सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। कश्मीर अपने कुदरती हुस्न और साफ आबो हवा के लिए मशहूर है, लेकिन अब यहाँ आलूदगी खतरनाक हद तक बढ़ रही है। इस सूरत हाल से निपटने के लिए सरकारी सतह पर जहां कागजी घोड़े ही दौड़ाए जा रहे हैं, वहीं आवाम भी कुदरती माहौल के तई बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। पेश है फजा में बढ़ती आलूदगी पर श्रीनगर से न्यूज़ 18 एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद की रिपोर्ट। सहरंगेज कुदरती नज़ारों के साथ साथ कश्मीर की साफ और शफाफ आबो हवा हजारों सयाहों को सेहत बख्श माहौल फराहम करती है, लेकिन अब कश्मीर की हवाएं भी जहर आलूदा हो रही हैं। श्रीनगर और जम्मू शहर में फिजाई आलूदगी मुकर्ररा हद से तजावुज कर गई है। आम तौर पर ऐसी रिपोर्टों से इनकार करने वाले सरकारी अफसरान भी अब इस सूरत हाल से परेशान नजर आ रहे हैं। जम्मू और श्रीनगर जो है ये नॉन अटेनमेंट सिटीज़ में आ गया है। नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का मतलब ये है कि जब एक साल में 8 यानी 12 महीनों में से अगर 8 महीने लगातार अगर पोल्यूशन लेवल परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा हो तो वो नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का दर्जा हासिल कर लेता है। 11,000 गीगा टन्स का कार्बन इमिशन हमारे स्टेट से होता है और हमारे जो ईयरली तो हमारे जो पेड़ है उनकी कैपेसिटी जो है कार्बन एब्जॉर्ब करने की वो नियरली 10,000 गीगा टन्स है। तो हमारे पास अभी भी डेफिसिट जो बचता है तो दैट इज़ अराउंड 1,000 गीगा टन्स का डेफिसिट हमारे पास है। प्लस हमने बहुत सारे जो
आर्मी की व्हीकल्स आती है या फ्यूल जो कंजप्शन होता है पहाड़ों में फॉर वार्मिंग पर्पस, उनका आंकड़ा हमारे पास नहीं था, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑलरेडी ऐड ही होगा। जम्मू कश्मीर में ट्रैफिक फिजाई आलूदगी का सबसे बड़ा जरिया माना जा रहा है। मार्च 2018 तक के एदादोशुमार के मुताबिक रियासत में 16,57,433 गाड़ियां रजिस्टर हैं। इनमें से 6,60,627 सिर्फ वादी कश्मीर की सड़कों पर दौड़ती हैं। इसके अलावा एक सर्वे के मुताबिक रोजाना 80,000 के करीब गाड़ियां कश्मीर में दाखिल होती हैं जो यहाँ रजिस्टर नहीं हैं। इन गाड़ियों में एक बड़ी तादाद ऐसी गाड़ियों की है जो काफी पुरानी हैं और माहौलियाती आलूदगी में काफी इजाफा करती हैं। पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेकिंग मराकज तो यहाँ कायम हैं, लेकिन माजी में कई बार ये मराकज नकली सर्टिफिकेट जारी करते पाए गए हैं। पिछले साल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने श्रीनगर को दुनिया के सबसे ज्यादा आलूदा शहरों में शामिल किया था। हालांकि इस रिपोर्ट को रियासती पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रद्द कर दिया, लेकिन इंसानी जानों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले PM 2.5 के बारे में अभी भी कोई मुस्तनद दलील पेश नहीं की जाती। PM 2.5 का जो है ना, वो अगर उसका लेवल बहुत हो तो वो बहुत नुकसानदेह होता है। तो उसका जो लेवल जो है, उसका जो साइज़ है 2.5 माइक्रॉन होता है, बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है। ये ह्यूमन हेयर से, उसका जो हेयर होता है, ह्यूमन बाल जो होता है, उसका भी 20वां हिस्सा होता है, यूँ समझिए आप। उसकी क्या हालत है? उसका लेस वो हमने 17 में लगाए, उनका लेवल भी जो है परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा है। ये कंसर्न है, दैट इज़ वाई अब हमने ये फैसला किया है कि हम शहर जो श्रीनगर सिटी और जम्मू सिटी है, इसको बाकी हिस्सों में भी हम PM 2.5 और लगाएं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक श्रीनगर में गर्दो गुबार और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में मौजूद मुज़िर सेहत अज्जा की वजह से कई बीमारियां फैल रही हैं, या फिर पहले से दमा और दिगर ऐसे अमराज में मुब्तला लोगों की हालत बिगड़ रही है। उधर सरकार अब आलूदगी को कम करने के लिए नए एक्शन प्लान की बात कर रही है। ये प्लान सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी सबमिट किया, उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उसमें होलिस्टिकली ट्रैफिक के पोल्यूशन से लेके जो इंडस्ट्रीज़ का पोल्यूशन है, ब्रिक किल्न का पोल्यूशन है, सारे एस्पेक्ट्स को उसमें हम कवर करेंगे और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में जहां इंसानी आबादी में सालाना 2% का इजाफा होता है, वहीं गाड़ियों की तादाद में एक सर्वे के मुताबिक 7% सालाना का इजाफा होता है। ऐसे में कई माहिरीन कहते हैं कि सरकार का ये एक्शन प्लान कछुए की चाल चलने के मुतरादिफ है। ऐसा इसलिए कि 2 दहाई पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने जो हिदायत दी थी, वही हिदायत आज भी इस एक्शन प्लान में शामिल हैं। तकरीबन 2 दहाई पहले जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि सड़कों पर से पुरानी गाड़ियां हटाई जानी चाहिए, लेकिन अमल नहीं हुआ। उसके बाद साल 2012 में LPG की सूरत में मुतबादिल फ्यूल यानी ईंधन मुयस्सर रखने की बात की गई, लेकिन अमल नहीं हुआ। ज़मीनी सतह पे कुछ भी नहीं हुआ। ईंट के भट्टू के बारे में जो इस नई टेक्नोलॉजी की बातें अब की जा रही हैं, इसके बारे में भी हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। सरकारी अफसरान और मंसूबा साजों की बेहिसी एक तरफ, हम आम लोग भी इस बेहिसी का शिकार हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियां रखना हमारे लिए स्टेटस सिंबल नहीं होता। ज़रूरत इस बात की है कि हम आम लोग भी माहौल को बचाने की इन कोशिशों में जुट जाएं। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा बालतल और चंदनवाड़ी के रास्तों से जोश खरोश से जारी है। आज चौथा जत्था मुकद्दस गुफा की जानिब रवाना हुआ। सख्त सिक्योरिटी के बीच अमरनाथ यात्रियों का 5वां काफिला पहलगाम पहुंच गया। यात्रियों को पहलगाम के नुनवन यात्रा बेस कैंप में रोका गया। यहां से वो कल सुबह मुकद्दस शिवलिंगम के दर्शन के लिए रवाना होंगे। अभी तक 40,000 के करीब यात्रियों ने मुकद्दस गुफा के दर्शन किए हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले यात्रियों ने तमाम इंतजामात और लोगों के ताउन की सत्ताइश की। आए दर्शन के लिए, व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं हुई, आने में भी, और भंडारा भी बहुत था रास्ते में, अच्छा ही रहा। सब बोलते हैं कि बहुत डरावनी चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम अभी जम्मू से आ रहे हैं, बढ़िया वातावरण रहा है, सब फ्रेंडली रहा, मिलिट्री का सपोर्ट ज़्यादा है, पहले से सब अच्छा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी ने सब व्यवस्था अच्छी कर दी है। अब हम जाएंगे बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। यह श्रीनगर से ही लोकल है, बहुत उनका बढ़िया व्यवहार है, एकदम फ्रेंडली, वो हमको सब गाइड भी करते रहते हैं।
अमरनाथ यात्रा के मुनासिब बंदोबस्त को लेकर इंतजामिया बड़े बड़े दावे तो कर रहा है, लेकिन यात्री निवास जम्मू का जायजा लें तो इन दावों की कली खुल रही है। इंतजामिया को चाहिए कि यात्रियों को दरपेश मसाइल हल करने की जानिब फौरी तवज्जो दे। पेश है जम्मू से कोमल सिंह की ये रिपोर्ट। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से यात्री भोले बाबा के दर्शन के लिए जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास पहुंच रहे हैं। यात्री निवास के बाहर यात्रियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बेस कैंप में दाखिले के लिए यात्रियों को कई घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी के दिनों में लोगों को खुले आसमान के नीचे ही काफी देर तक बैठना पड़ रहा है। यात्री बेस कैंप में इंतजामात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। लोग 4 घंटे से यहाँ से लाइन में खड़े हुए परेशान हो रहे हैं। अभी तक लाइन आगे भी जारी है, पता नहीं कितना समय लगेगा, कैसी व्यवस्था आगे मिलेगी नहीं मिलेगी। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। पता चला कि अंदर व्यवस्था है नहीं यात्रियों की। अब हम अंदर जाके देखेंगे क्या व्यवस्था है, कैसी प्रशासन की व्यवस्था है। पानी की सुविधा नहीं है, रूम की सुविधा नहीं है, 44 टेम्परेचर है। आप देख रहे हो कैसे हाल में सब बैठे हुए हैं, यहाँ पसीना गिर रहा है सभी को। यात्रा से पहले इंतजामात को लेकर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने क्या कुछ कहा था, आप खुद सुनिए। अग्रवाल सभा है, महाजन सभा है और इस तरह से बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे उनको लॉजमेंट सेंटर डिक्लेयर किया गया है। तो जैसे भी यात्रा इस तरह की तंगी आती है, पिछले साल भी जैसे एक तो भगवती नगर में लगभग 1800-1900 लोग होते हैं, यात्रा रुक जाती है। आपका कहना ठीक है कि 3-3, 4-4 दिन वो यहाँ पे एक स्टैग्नेशन हो जाता है। यात्रियों को जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ की इंतज़ाम जो है वो उनको पानी का, बैठने का, हवा का माकूल इंतज़ाम किया जाए। अमरनाथ यात्रा 15 अगस्त से जारी रहने वाली है। इंतजामिया को चाहिए कि अभी जो कुछ खामियां रह गई हैं उनमें सुधार किया जाए और दूर दराज इलाकों से आए इन यात्रियों को दरकार सहूलियात फराहम की जाए। कि यात्रा के दौरान देश भर से आने वाले यात्रियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन फिर भी हर बार यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बार भी यात्रियों की ऐसी हालत को देखकर ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की सुख सुविधाओं में कहीं कमी रह गई है। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। कश्मीर न्यूज में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। रियासती हुकूमत ने श्रीनगर और जम्मू में लाइट रेल सिस्टम मुतारिफ करने का मंसूबा बनाया है ताकि अर्बन मोबिलिटी में सुधार लाया जा सके। महकमे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी धीरज गुप्ता ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात की जानकारी दी। लाइट रेल सिस्टम 5 साल के अंदर मुकम्मल करने की तजवीज है। धीरज गुप्ता ने ऐलान किया कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने श्रीनगर और जम्मू मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हुदूद के तायुन को मंजूरी दे दी है। धीरज गुप्ता ने कहा कि आइंदा 6 महीनों के दौरान श्रीनगर में तकरीबन 100 ई बसें ऑपरेट की जाएंगी। It is proposed to have a light rail system, the first in India, which will have a very low footprint, low noise, greater comfort, aesthetic appeal, and will blend with the surrounding landscape. The estimated cost of the first phase of implementation of the light rail project would be about rupees 8,500 crores to be funded jointly through debt, state security and central assistance. The proposed corridors for the two cities would be as under. The Srinagar in phase 1, there are 2 corridors, HNT junction to Indiranagar and from Osmanabad to Hazuribagh. A total of 25 kilometers to be covered with 24 stations. लेह में जिनसी हिरासानी मामले पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। तलबा समेत दीगर अफराद ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया और मुलजिम की फौरी गिरफ्तारी और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। लेह गेट पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के साबिक सदर सिवांग के खिलाफ नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि एक लड़की को जिनसी हिरासा करने के इल्जामात के बाद एसोसिएशन ने सिवांग को सदर के ओहदे से हटा दिया था। वहीं पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज की है। रैली आप सभी को पता है कि रिसेंटली एक केस जिसमें एक माइनर के साथ एक सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, तो उस केस को बिल्कुल हम पूरा स्टूडेंट एसोसिएशन जम्मू, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून और जितने भी स्टूडेंट एसोसिएशन जो हर भारत के कोने में वो सब कंडेम करते हैं, स्ट्रांगली कंडेम करते हैं।
महकमे जंगलात कुलगाम के आरजी व कैजुअल मुलाजमीन ने मिनी सेक्रेटरीट में एक एहतजाजी मुजाहरा किया। उन्होंने गवर्नर, इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया। बीजेपी जिला जनरल सेक्रेटरी आबिद खान ने मुआवला इंतजामिया और मुतल्लिका महकमे से उठाने की बात कही है। उन्होंने जायज मुतालबात को पूरा करने की मांग की। खर्चा आता है, उसके बावजूद गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला है 520 के तहत उनको रेगुलर किया जाए, उसके बावजूद भी उनको रेगुलर नहीं किया गया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मुंसलिक ट्रक ड्राइवरों ने मिनी सेक्रेटरीट में एहतजाज किया। उन्होंने इंतजामिया के मुबैना सख्त रवैये की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि चावल से लदी ट्रकें कई दिनों से अनलोड नहीं की जा रही हैं। इन्हें एफसीआई गोदाम वाक़ अमीर बाजार में भी दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की। हम डीसी साहब के पास आए, अगर इसका हल आज ना निकला तो कल हम तमाम गाड़ियां, अपनी 220 गाड़ी है वहां, वो रोड पर चढ़ा के हम आग लगा देंगे। हिलमतपुरा कुफाड़ा के लोगों ने सिलकूट हलमतपुरा सड़क की खस्ताहाली को लेकर डीसी ऑफिस कुफाड़ा में खामोश एहतजाज किया। लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि इंतजामिया सड़क की कुशादगी को लेकर कोई पहल नहीं कर रही है। लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सड़क की कुशादगी के साथ साथ सड़क पर मैकडम बिछाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर महकमा माल बशीर अहमद ने अफसरान को हिदायत दी कि फौरी तौर पर सड़क की कुशादगी के अमल में तेजी लाई जाए। ऐसे हलमतपोरा सोलकूटस रोड तथ पेवान वनस मैकडम, अजन जायन 15 फुट, अजन जायन 14 फुट, ये जन अमन के नीन 30 फुट। करान तुंद वसात हुकूमत गुजारिश कि अत रोडस करिन अत वरी अत रोडस करिन। डाक बंगला गुरेज में पीडीपी वर्करों का एक रोजा कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। इसकी सदारत पार्टी लीडर व साबिक रुकन असम्बली गुरेज फकीर मोहम्मद खान ने की। गुरेज के अलावा तुलेल के वर्करों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। फकीर मोहम्मद खान ने वर्करों पर जोर दिया कि वो पार्टी को बुनियादी सतह पर मुस्तहकम बनाएं। बांडीपुरा में पुलिस की जानिब से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया टैलेंट हंट शो छूना है आसमान इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोजा टैलेंट शो में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले लड़कों और लड़कियों ने हिस्सा लिया। शो में हिस्सा लेने वालों ने अंग्रेजी और उर्दू के अलावा कश्मीरी और गोजरी में गीत पेश करके लोगों से खूब दाद हासिल की। कुछ बच्चों ने शीना जबान में भी गीत गाकर अपनी मादरी जबान के तई अपना प्यार दिखाया। पुलिस का कहना था कि बांडीपुरा के नौजवान काफी हुनरमंद हैं और इनकी सलाहियतों का उजागर करने के लिए ही पुलिस इस तरह के प्रोग्राम मुनाकिद कर रही है। करगिल टूरिस्ट फेस्टिवल के ज़िम्न में आज एक अहम मीटिंग मुनाकिद हुई। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान, DC करगिल बसीरुल हक चौधरी, एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी पंचूक, असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सैयद आका के अलावा टूर ऑपरेटर्स और दीगर अहदेदारों ने इसमें शिरकत की। चेयरमैन और DC ने करगिल फेस्टिवल को कामयाब बनाने पर जोर दिया और इसके लिए मौसर इंतजामात करने के हुक्काम को हिदायत दी। मीटिंग में फेस्टिवल का प्रोमो भी लॉन्च किया गया। करगिल फेस्टिवल 21 और 22 जुलाई को मुनाकिद होगा। जो सबसे अच्छा कदम उठाया है वो ये है कि हमने इसकी डेट जो है वो वेल इन एडवांस जो है हमने अनाउंस की है। दूसरा ये है कि इसका जो टाइमिंग थी, जैसे पहले नवंबर में होती थी, कभी जनवरी में होती थी, तो उस समय क्या होता था कि मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो है वो आ नहीं सकते थे क्योंकि जोजिला हमारा बंद हो जाता था। तो इस बार हमने ये इंश्योर किया है और आने वाले टाइम में भी इसका जो एक रेगुलर कैलेंडर जो है वो इशू होगा हर साल के लिए। माता शिवा भगवती के यौम पैदाइश के सिलसिले में भगवती नगर जम्मू के मंदिर में एक तकरीब का इनकाद किया गया। इसमें खासी तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। अकीदतमंदों के लिए प्रसाद और लंगर का भी एहतमाम किया गया था। उन्होंने भजन और दीगर इबादत में हिस्सा लिया। अमन खुशहाली के लिए दुआ भी की गई। जन्मदिन पर इसके वक्त इसका उत्सव मना रहे हैं। इस साल भी पिछले साल की तरह हम जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर एक सत्संग का आयोजन किया जाता है, एक लंगर का आयोजन किया जाता है जो भक्तों को में बांटा जाता है। इस मौके पर हम इसके वक्त जो हैं कश्मीर जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए, सारे हिंदुस्तान की भलाई के लिए भगवान से दुआएं मांगते हैं। यज्ञ रचाया गया है, लोक कल्याण के लिए है, अपने भाईचारा जो जम्मू कश्मीर में जो अशांति है उसकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ भगवती सबको शक्ति दे और सुख शांति रखे। और
उधर अनंतनाग के अकिंगाम इलाके में कायम माता शिवा भगवती के मंदिर में एक यज्ञ व हवन का एहतमाम हुआ। कश्मीरी पंडितों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। पीडीपी के सीनियर लीडर अब्दुल रहीम राथर भी मौजूद रहे। राथर ने कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम हुआ और कश्मीर में क़याम अमन के लिए खास दुआएं की गईं। रहीम राथर ने कश्मीरी पंडितों की वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया। लोग हैं जो अभी पिछले 30 साल से यहाँ नहीं आए, उनसे मेरी गुजारिश है कि आया करें। जिस तरह ये हमारे भाई यहाँ आए हैं, इनको भी कोई खौफ खतरा नहीं है। एक बार जब वो यहाँ आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो भी चाहेंगे कि वो यहाँ से वापस फिर किसी दूसरी जगह बसने के लिए नहीं जाए। ये इनका घर है, ये इनकी भूमि है, ये यहाँ इन्होंने जन्म लिया है, यहाँ इनकी अपनी जायदाद है। वादी भदरवाह की कुदरती खूबसूरती सयाहों को अपनी जानिब राग़िब करती है और हर साल बड़ी तादाद में सयाह इन खुशनुमा मनाजिर से लुत्फ अंदोज होते हैं। इन तस्वीरों में सयाहों को यहाँ के नज़ारों को कैमरों में कैद करते देखा जा सकता है। साथ ही सब्ज़ार पर हर जानिब कूड़ा करकट भी नजर आ रहा है। माहिरीन माहौलियात ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। एक जानिब सयाह मौसर इंतजामात न करने का इंतजामिया पर इल्जाम लगा रहे हैं, वहीं इंतजामिया का कहना है कि सयाह माहौल को खराब कर देते हैं। माहौल को साफ सुथरा रखने की जिम्मेदारी इंतजामिया और सयाहों दोनों पर बनती है और इसके लिए संजीदा इक़दाम की जरूरत है। यहाँ पर कूड़े का ढेर है, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। जिस स्पीड से लोग आ रहे हैं और कचरा फैला रहे हैं, बहुत जल्द ये पूरे के पूरे जितनी हाई एल्टीट्यूड मीडोज हैं भदरवाह की, चाहे वो पदरी है, जाई है, गुलडंडा है, छतरगला है, भालपदरी है, ये सब की सब कचरे का ढेर बन जाएंगी और ये कभी ना हटने वाला कचरा होगा। जगह तो बहुत अच्छी लगी। जहाँ हम रहते हैं वहाँ क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वहाँ के कंपैरेटिव यहाँ हमें बहुत मज़ा आया और हमने खूब इंजॉय किया। लेकिन यहाँ के लोगों से भी अपील है और यहाँ के प्रशासन से भी हमारी अपील है कि यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखें। इन्फोर्समेंट विंग बनाया, प्लान कर रहे हैं कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम वहाँ पर भी में पुट द बैरियर्स कि अगर कोई पॉलीथीन लेके कोई चिप्स के पैकेट लेके आता है तो वो वहीं पर रख के आएगा। उसी मैंने डायरेक्शंस दी कि हम बड़ी जल्दी कुछ ही दिनों में वहाँ बोर्ड लगाने जा रहे हैं कि दिस इज ए लिटर फ्री एरिया और जो भी जहाँ लिटर फैलाएगा, जो भी जहाँ प्लास्टिक को यूज करेगा, उसे हैवी पेनल्टी लगाई जाएगी। जिला शोपियां के मुख्तलिफ देहात में पीने के पानी की किल्लत है। शोपियां के मलिक गुंड में कई बरसों से मकामी आबादी पीने के पानी से महरूम है। लोगों को आलूदा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। मकामी आबादी ने महकमे पीएचई के अफसरान को आगाह भी किया, लेकिन कुछ नहीं किया गया। यही हाल जिला शोपियां के मलाडेरा इलाके का भी है। यहाँ भी पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान हैं। हालत पदमो 3 वरियों 40 वरियों पे आबुक गोडनिक नंबर आब यह सिर्फ गाँव हरकन अकि कल मज यन मज आब पाइप खसान और गाँव चवन गंदा आब न ड्रेनेज सिस्टम न टंकी न चीज बे डस्टबिन गई त्रावन सारी मोम जाम गड़ा मरगुजारस मज। आरीपल त्राल में लोगों को तिब्बी सहूलियात न होने की वजह से मुश्किलात दरपेश हैं। लोगों का कहना है कि सरकार ने कई दहाई कबल इलाके में पब्लिक हेल्थ सेंटर कायम किया था, ताहम इसमें बीमारों के लिए कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि अस्पताल की इमारत भी अब खस्ता हाली की शिकार हो गई है। नई इमारत बनाने का काम शुरू किया गया मगर अभी तक इसको मुकम्मल नहीं किया गया है। उन्होंने इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। हस्पताल प्रोन हस्पताल ब्रोट फैसिलिटी यानी लुक पे ब्रोट गसान पत रिवर्स अत मज कहीं फैसिलिटी जन वात बेमार न दवा न स्टाफ पूरा कह बेमार पे 10 किलोमीटर नारस तान दूर या यपर लाम एरिया दूर जनाब दिक्कत ओत वो गसान अत पे त्राल तह फैसिलिटी। आरीपल में बन रहा है, उसका काम बहुत सुस्त से चल रहा है। उस पर तकरीबन 4-6 साल से काम अभी इनकम्प्लीट हो चुका है। तो हम गुजारिश करते हैं और जो हॉस्पिटल ऑलरेडी आरीपल में मेंशन है उस पर कोई स्टाफ भी नहीं है, हमें बहुत दुश्वारी होती है।